So hello student, today we are going to discuss about chapter 13, that is magnetic effect of electric current from class 10. Basically in this chapter we will learn about what are magnets, what are magnetic field lines, what are the different properties that they offer, how we are going to apply such activities in our daily life for our benefit rule. So basically in this we will discuss about electric motors, generators, the working of it and all. So basically, we'll start with the basic definition of magnet, that they are the materials that attract iron and they alloy. Matlab, these are the materials that have the capability of attraction. That means they are going to attract towards a certain substances. We have iron. Along with iron, what we have? Nickel. We have cobalt and copper also, and all the alloys of iron. So these are the different substances that are going to attack with the magnet. So now comes to the type of magnet. So basically there are two types of magnet. What we have? First we have natural, that are present in nature. The second we have artificial, that are man-made magnets. So when we are saying natural, matlab these are the substances that are naturally present in the earth crust. Suppose you are having one magnet bar, you just dropped on the earth surface. There are some elements that are going to attract towards that magnet, that we known as natural magnet. The second we have artificial, that means the man-made. In this we have electromagnet. Electromagnet, as the term suggests, that means when electricity is passing, then these magnets are showing magnetic properties, like they are going to attract towards any substances that we have: nickel, copper, cobalt and irons. So these are the electromagnets. If we stop the current flow, then the properties of magnet has been gone. So that's the electromagnet. The example what we have: soft iron. These are made of soft iron with wires of copper or aluminum. Okay, that's known as electromagnetic. So now comes why we are saying magnetic effect of current. So basically हम यहाँ से ये समझते हैं, एक साइंटिस्ट थे हमारे, his name was Hans Christian Oersted. So he was a scientist in 1820. He conducted one experiment. इन्होंने एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि अगर कहीं से किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट करता है. तो बेसिकली इनके मॉडल में क्या था, यहाँ पे हमने एक लूप बनाया, ठीक है, एक करंट का. यहाँ पे हमने एक कंपास रखा, ठीक है. कंपास है निडल, ठीक है, वो हमें डायरेक्शन बताता है नॉर्थ और साउथ का. तो जैसे ही हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करी, करंट फ्लो करेगा. जैसे करंट यहाँ पे फ्लो करा तो यहाँ पे हमें क्या मिला? डिफ्लेक्शन मिला. जैसे अगर हमारी पहले निडल ऐसे थी तो वो डिफ्लेक्ट होके ऐसे हो गई, जिसकी वजह से हमें ये पता चला कि जैसे ही करंट फ्लो हो रहा है तो कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा है. दैट मीन्स दे आर प्रोड्यूसिंग सम चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो वी गॉट टू नो कि यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है करंट की वजह से. तो ये साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा, इन्होंने ये डिटरमाइन करा. Now comes about the magnetic field lines. What are magnetic field lines? So basically these are the imaginary lines that we can't see but we can experience. Here I have drawn one diagram of bar magnet in which we have north pole and south pole. You all know. These are the different lines that I have constructed, but these are imaginary. We can't see but I can draw here. So basically to determine what are these magnetic field lines, what is the direction of these magnetic field line, what we do, we just need a compass. We have to place a compass here, 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 and what we are going to see the direction of this light. That means the direction where it's flowing. Suppose if you have placed a compass over here, like here, the line over here shows the needle line. Okay, that means north is over like this. So direction of this magnetic field lines is always from north to south, outside the magnet, over here. When we place a compass over here, we see the direction over here. Okay, when we place a compass over here, what we feel? We see the direction over here. So I have drawn these lines.
When we are seeing this magnet from outside, the magnetic field lines has a direction of north to south. So when we are seeing magnetic field lines, so these are the spaces outside the magnet where we are not seeing that lines, but we are experiencing it. That is known as magnetic field lines. So what are the different properties of magnetic field lines? Properties. First thing, these are imaginary lines. ठीक है, imaginary lines. The second what we see, these are forming a closed loop. ठीक है, closed loop. The third thing we see, these magnetic field lines, what do they have? They have the magnitude as well as the direction. How we understand this magnitude term? So magnitude का मतलब होता है स्ट्रेंथ. हम स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन करेंगे? जितनी क्लोज ये लाइंस होगी, मतलब वहां पे उतना ज्यादा फोर्स होगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट होगा. अगर हम यहाँ पे देखें एंड की तरफ, साउथ पोल में देखो यहाँ पे कितने क्लोज है, तो दैट मीन्स यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी कंपैरेटिव टू दीज लाइंस. सो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसमें हमारा मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है. अब मैग्नीट्यूड मतलब स्ट्रेंथ. अगर बहुत ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड लाइंस होगी तो मतलब वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, वहां पे बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हम देखेंगे कंपैरेटिव टू अदर्स. लाइक यहाँ पे हम जो देख रहे हैं. अब तुम्हारा क्लोज लूप, क्लोज लूप मतलब यहाँ से जाएगी, यहाँ पे गई, अंदर गई. अंदर कैसा होगा मैग्नेटिक डायरेक्शन? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ठीक है, अगर हम डायरेक्शन की बात करें आउटसाइड द मैग्नेट, दैट मीन्स नॉर्थ से साउथ की तरफ. इनसाइड द मैग्नेट हम देखें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ. ये हमारा डायरेक्शन हो गया. दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, क्लोज लूप, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में. चौथी चीज क्या होगी? दे आर नेवर गोइंग टू इंटरसेक्ट. नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर. सो जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ये प्रॉपर्टीज बताई. इमेजिनरी लाइंस होगी, क्लोज लूप बनाएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, नेवर गोइंग टू इंटरसेक्ट विथ ईच अदर. हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे मैग्नेट पे. अब ये बार मैग्नेट है, हमने लाइंस दिखाई कि कैसे हम लाइंस को बताएंगे. फिर उसके बाद हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ के बारे में भी हमने बात करा. इमेजिनरी लाइंस है मतलब यहाँ पे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं. एक्सपीरियंस इन द सेंस, अगर हमने यहाँ पे मतलब जो मटेरियल्स लिया जो अट्रैक्ट करता है मैग्नेट, अगर हमने वो मटेरियल लिया तो अट्रैक्ट करेगा, मतलब वो हम एक्सपीरियंस करेंगे. तो दैट मीन्स दीज आर इमेजिनरी लाइंस दैट वी एक्सपीरियंस्ड. नाउ कम्स टुवर्ड्स द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. पहला प्रॉपर्टी अट्रैक्शन, दूसरा है रिपल्शन. अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अगर अपोजिट होगा तो अट्रैक्ट होगा. जैसे यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, तो दैट मीन्स दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट. क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में जाएगी, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा. रिपल्शन में क्या है? अगर सेम पोल एक तरफ होगा तो रिपेल करेगा. हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ड्रॉ करा है कि यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, दैट मीन्स ये रिपेल हो रही है. वैसे ही साउथ साउथ आपस में रिपेल करेगा. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट. Now comes what are the different experiment has been conducted towards to understand what is the direction of magnetic field lines in a current carrying loop. So अब हम इसमें explain करेंगे. Magnetic effect of current carrying conductor. अब हम यहाँ पे कंडक्टर का भी वर्ड यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे वायर भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने एक डायग्राम से हम एक्सप्लेन करते हैं इसको. सपोज ये हमारा एक हमने सेटअप बनाया जहाँ पे हमने बैटरी अटैच करी. यहाँ पे बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल होगा. अब जैसे हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा तो करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ. ठीक है,
अब वैसे ही हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में भी बताएंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ। सो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमने क्या करा, एक हमने पेपर लिया, ठीक है, पेपर हमने यहाँ पे प्लेस करा ऐसे करके, मतलब हमने एक कॉपी ली, कॉपी के बीच में होल कर दिया और वहां से वायर पास कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या करा, ये यहाँ पे एक स्विच भी बनाएंगे, ठीक है। स्विच से हमें क्या होगा, अगर हमें चाहिए होगा तो हम इसको ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं। अब इस पेपर में हमने छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स लिए, छोटे छोटे आयरन ले लिया, आयरन पार्टिकल्स ऐसे करके। जैसे ही हमने इसमें करंट फ्लो करा, हमने क्या देखा, ये जो आयरन के पार्टिकल्स हैं ये एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में फॉर्म हो गए। मतलब दैट मीन्स अगर हम आपका पेज ऐसे बनाएं, ठीक है, अब आयरन पार्टिकल्स अंदर दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, छोटे छोटे सर्कल्स के फॉर्म में ऐसे करके, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल, ठीक है। जैसे ही करंट फ्लो हुआ, वैसे ही हमने नीचे भी करा एक्सपेरिमेंट। हमें डायरेक्शन भी जानना होगा कि किस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो जैसे हमने एक वायर लिया, उसके बीच में हमने अपना पार्टिकल्स रखा, करंट फ्लो करा, तो ये भी एक सर्कल के फॉर्म में ही जाएगा। मतलब तुम्हारा जो आयरन पार्टिकल है वो छोटा छोटा मिलके एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएगा। अब हमें डायरेक्शन कैसे पता चलेगी कि हमारा जो वायर है उसमें तुम्हारा नॉर्थ पोल क्या होगा, साउथ पोल क्या होगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हमने यहाँ पे बार मैग्नेट के केस में तो हमें डायरेक्शन पता है, हमने बता दिया, हमने यहाँ पे कंपास प्लेस करा, उससे हमें डायरेक्शन पता करी। सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। क्या करेंगे, जो आयरन नेल्स है यहाँ पर हम छोटे छोटे कंपास लगाएंगे। कंपास जैसे लगाया तो हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, जो आपका थंब है वो आपका करंट का डायरेक्शन है, और जो आपके फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन है। सपोज यहाँ पे आपके करंट क्या है, अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड ये गया, आपकी फील्ड लाइंस क्या हुई, अंदर, यहाँ से अंदर जाएगी ऐसे करके, यहाँ से बाहर निकलेगी। ये डायरेक्शन कैसी हुई, क्लॉकवाइज। अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो ये डायरेक्शन आपकी कैसे हुई, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये वाला देखो, अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, आपने अपना थंब लिया, पेपर पे ऐसे लगा दो थंब, थंब का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ की तरफ आएगी, बाहर की तरफ। दैट मीन्स आपका ऐसे करके मूव हो रहा है। ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट में लिया, हमें पता चला कि राइट हैंड थंब रूल से हमें डायरेक्शन भी पता चल गई, और प्लस हमें ये भी पता चल गया कि अगर ऐसा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होगी, जैसे बार मैग्नेट में हुआ उस तरीके की फील्ड लाइंस ही होगी। ये क्या होगी, सर्कुलर फॉर्म में होगी। अब ये वायर है आपका, ठीक है। अब वायर अगर करंट ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे 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 आपकी जाएगी, मतलब पूरे उसमें होगी। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन हो गया। अब इसको आपको याद कैसे रखना है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ईस्ट और वेस्ट के बीच में, ईस्ट है ये आपका, ऐसा आपने ड्रॉ करा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि आपने एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहे हैं हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब हमारा करंट की डायरेक्शन ऐसे है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर होगी, हमने अपना राइट हैंड लिया, इसके डायरेक्शन में लगाया, कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है ये, और ये बाहर निकल रहा है। दैट मीन्स यहाँ से ये अंदर जा रहा है और यहाँ से ये बाहर निकल रहा है। अगर आप वेस्ट की तरफ हो और आप ईस्ट की तरफ हो, दोनों तरफ से आपको अलग अलग दिखेगा। वेस्ट की तरफ हो तो कैसा लगेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और यही चीज आप ईस्ट की तरफ से देखोगे तो आपको कैसा लगेगा, क्लॉकवाइज। तो क्वेश्चन को सही से रीड करना कि किस डायरेक्शन में से आपको देखना है, और आपको करंट से आप कैसे निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो ये आपका हो गया नॉर्मल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर।
सिमिलरली करंट कैरिंग लूप में भी हम इसको देख सकते हैं। मैं वो डायग्राम भी आपको बना के दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे आपका एक वायर है, ठीक है, वायर को आपने लूप का शेप दे दिया। लूप कैसे, ऐसे करके आपने लूप का शेप दे दिया। ठीक है, ये बेंड कर दिया, यहाँ पे आपने अपनी बैटरी लगा दी ऐसे करके, ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव, यहाँ पे आपका स्विच है, आप ऑन करोगे स्विच करंट फ्लो होगा, आपने ऑफ करा तो करंट फ्लो नहीं होगा। सपोज हमने ऑन करा तो हमारी करंट ऐसे जाएगी, इधर से यूं, इधर से यूं, इधर से यूं। अब हम यहाँ पर भी हमें देखें कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। सिंपल राइट हैंड थंब रूल लेना है, जहाँ पे करंट का डायरेक्शन उधर करना है। यहाँ पे कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। ये पकड़ा, यहाँ पे फील्ड लाइंस की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ, मतलब बोर्ड के अंदर परपेंडिकुलर। यहाँ पे पकड़ा अंदर की तरफ, यहाँ पे पकड़ा अंदर की तरफ। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, इधर से सब अंदर जा रही है। ठीक है, अंदर जा रही है। ठीक है, और यहाँ से कैसे होगा, अगर लूप को आप यहाँ से आप पकड़ोगे अंदर जा रहा है, इधर से देखो बाहर की तरफ, मतलब ये आपका लूप है, ऐसे आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। ठीक है, दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कैरिंग लूप। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सोलेनॉइड के बारे में, और आपका जो अगर हॉर्स शू मैग्नेट्स है, अच्छा आप मैग्नेट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। जैसे हमारा हम डिटरमाइन करते हैं कौन कौन से टाइप्स। हमारा पहला हो गया हॉर्स शू, ये आपका शेप के हिसाब से डिटरमाइन होता है, हॉर्स शू मैग्नेट। फिर आपका क्या है, बार मैग्नेट, अभी हमने बार मैग्नेट देख लिया। ठीक है, अब हमारा निडल आया, जो हमारा कंपास में यूज होता है, ये सब डायरेक्शन बताने के काम आता है। वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं। ठीक है, डिफरेंट शेप्स, ये हम क्योंकि खुद बनाते हैं ना, तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट शेप पॉसिबल है। अब हॉर्स शू मैग्नेट, बार मैग्नेट, निडल, अब हम ये सारी चीजें देखेंगे। जब हम इलेक्ट्रिक मोटर की बात करेंगे तो हम वहाँ पे हॉर्स शू मैग्नेट की बात करेंगे, हम दिखाएंगे कि वहाँ पे कैसे होगा। फिर बार मैग्नेट की जब हम बात करें तो हम सोलोनॉइड से लूप वगैरह की जब बात करेंगे तब हम बार मैग्नेट का बताएंगे, क्योंकि वो आर्टिफिशियली हमने बनाया है। निडल हमारा डायरेक्शन के लिए, एज यू नो, और डिफरेंट शेप का अलग अलग जगह पे जैसे जैसे यूज होता है वैसे वैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। So basically in this chapter what you have learned, you learned about what is magnet, what are the different type of magnet, shape of magnet, along with magnetic field lines, what experiment has been conducted to determine these magnetic field lines, and also what are the properties of these magnetic field lines. Then we discuss about right hand thumb rule, and in my next video I will discuss about electric motors and all. So stay tuned for that. Thank you.